Hello students, now we are going to discuss fifth part of chapter 3 current electricity. Topics are EMF and potential difference, internal resistance, series and parallel combination of cells. Cell. Cell is a device which converts chemical energy into electrical energy. It is a source of electric current. When a metal electrode is dipped in an electrolyte, negative or positive ions tend to go from electrolyte to electrode. Thus, an EMF is produced between electrolyte and electrode. Primary cell. A cell which is used for discharge only is called primary cell. Example, Daniell cell, Leclanché cell, dry cell, etc. Secondary cell. A cell which can be discharged or charged is called secondary cell. Example, lead accumulator. सेकेंडरी सेल को आप दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं, बट प्राइमरी सेल को हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते. EMF, electromotive force. It is the maximum potential difference between two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell. जब आप सेल से करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं उस टाइम जो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड EMF व्हेन सर्किट इज ओपन. The name EMF is misleading as it is not a force but it is the work done by the source per unit charge. SI unit of EMF is volt or joule per coulomb. Comparison of EMF and potential difference. EMF is the maximum potential difference between two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell when circuit is open. And potential difference is the difference of potentials between any 2 points in a closed circuit. EMF is independent of the resistance of the circuit, while potential difference depends upon the resistance. It is directly proportional to the resistance. EMF is used, the term EMF is used for the source of electric current, and potential difference is measured between any 2 points of the circuit. EMF is greater than the potential difference between any 2 points in the circuit. However, potential difference is greater than EMF when cell is being charged. जब आप सेल को चार्ज कर रहे होते हैं उस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सेल की EMF से बड़ा होता है. Internal resistance of a cell. The opposition offered by the electrolyte of the cell to flow of electric current through it is called internal resistance of the cell. It is denoted by R. Its formula is R is equal to E upon V minus 1 into capital R. तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है? जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रोलाइट ही उस करंट को अपोज करता है. That opposition offered by the electrolyte of the cell to flow of electric current through it is called internal resistance of the cell. जो न्यू सेल होता है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती है, न्यू बैटरी होती है उसकी भी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती है. जैसे जैसे सेल और बैटरी पुरानी होती चली जाती है तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. तो आपने भी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया होगा. तो जो न्यू बैटरी होती है उसका बैकअप ज़्यादा होता है और जो ओल्ड बैटरी होती है उसका बैकअप कम हो जाता है बिकॉज उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. तो फर्स्ट है सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स. लार्जर द सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, more the length of the electrolyte through which current has to flow and consequently a higher value of internal resistance. तो जितना इलेक्ट्रोड्स के बीच में सेपरेशन ज़्यादा होगा उतने ही करंट को ज़्यादा लेंथ फ्लो करनी पड़ेगी, ज़्यादा पाथ कवर करना पड़ेगा और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी. सेकेंड पॉइंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेसर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस. तो मतलब जितनी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उतनी उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी. नेक्स्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स.
पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था, अब है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिपिंग इन द इलेक्ट्रोलाइट, डिपेंड करता है कि आपने कितना इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रोलाइट में डिप करके रखा हुआ है। जितना ज़्यादा डिप करोगे उतनी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिपिंग इन द इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट इज, this is a cell of EMF E and internal resistance R. It is connected with an external resistance capital R and I is the current flowing through it. V, small v is the potential drop in the internal resistance and this capital V is the potential drop in the external resistance. So now we are going to derive the relation between EMF, current and resistance. तो net EMF जो है वो E है, तो capital V is the potential drop in the external resistance and small v is the potential drop in the internal resistance of the cell. और V का फॉर्मूला होता है IR। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट करेंगे, I कैपिटल R आ जाएगा कैपिटल V, I स्मॉल R आ जाएगा स्मॉल V, I कॉमन, then we will get I is equal to E upon R plus R. So net current drawn from the cell is equal to net EMF upon net resistance. This relation is called circuit equation. तो इस सर्किट की जो डिफरेंट वेरिएबल्स है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उनको आपस में रिलेट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सर्किट इक्वेशन। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इन टर्म्स ऑफ E, V and R. This is the same diagram. E is the EMF of the cell, R is the internal resistance of the cell, V is the potential drop difference provided by the cell to external resistance R. Potential difference भी कह सकते हैं, potential drop भी कह सकते हैं। I is the current drawn from the cell. We know that E is equal to V plus IR. तो IR की वैल्यू आ जाएगी E माइनस V। तो V जो होता है V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इसकी वैल्यू पुट कर दो एंड सॉल्व, वी विल गेट R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। स्मॉल r जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है, कैपिटल R जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अप्लाइड। नाउ स्पेशल केसेस, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब आप सेल से करंट ड्रॉ कर रहे होते हैं तो V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो V जो होता है वो छोटा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और EMF बड़ा होता है। ड्यूरिंग चार्जिंग ए बैटरी, जब आप बैटरी को, सेल को चार्ज कर रहे हैं तो, और करंट जो है फर्स्ट केस के अपोजिट फ्लो करता है इसमें। तो फर्स्ट केस में करंट फ्लो कर रहा होगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, और सेकंड केस में जो करंट फ्लो करेगा वो क्या करेगा, करंट विल फ्लो टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, देन V is equal to E plus IR when cell is being charged। जब आप सेल को, बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तो V is equal to E plus IR। If no current is drawn from the cell, circuit is open, then V is equal to E। नेचुरली ऊपर की इक्वेशन में, आप फर्स्ट इक्वेशन में देख लो, आप जब आप करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो I 0 हो जाएगा, तो V और E इक्वल हो जाएंगे। एंड इफ सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, जब सेल को आप शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, मींस आप सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को डायरेक्ट एक सिंपल वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो बोलता है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, तो V इज इक्वल टू 0। अब ये V 0 क्यों हुआ, लेट्स सी। करंट का फॉर्मूला होता है नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस, सो I इज इक्वल टू E अपॉन R, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल R जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो 0 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो E इज इक्वल टू IR, और V का फॉर्मूला पता है आपको, फर्स्ट पॉइंट में आपने पढ़ा था, V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो E की वैल्यू IR है, पुट करेंगे तो देन V इज इक्वल टू 0। दिस इज, सी केयरफुली। अब इस सर्किट में क्या है, की इज ओपन, तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी तो वो क्या होगी, EMF ऑफ द सेल। और सेकंड केस में क्या है, की इज क्लोज्ड, नो करंट इज फ्लोइंग। सी बोथ द डायग्राम्स, फर्स्ट केस में करंट फ्लो नहीं कर रहा है,
तो उस टाइम क्या है, सर्किट ओपन है, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, द वैल्यू ऑफ द गिवन बाय द वोल्ट मीटर इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। और सेकंड केस में करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस इज प्लेइंग इट्स रोल, देन the reading of voltmeter will be the potential difference provided by the cell to the external circuit. When circuit is closed, current is drawn from the cell. The reading of the voltmeter is the potential difference provided by the cell. Next, this is the same diagram. If we draw the graph between EMF and external resistance R, तो E का फॉर्मूला आपको पता है V प्लस आई आर होता है। V की वैल्यू पुट करेंगे आई आर, तो I कॉमन आ जाएगा। सो I इज इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर, ये भी फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। फ्रॉम दीज इक्वेशंस इट इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ R इंक्रीजेज, करंट I डिक्रीजेज, बट देर इज नो इफेक्ट ऑन EMF। जब आप R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे तो करंट चेंज होगा, बट EMF पे कोई फर्क नहीं पड़ता। So graph will be a straight line parallel to resistance axis. EMF of cell is independent of the external resistance applied. If we draw the graph between potential difference and external resistance, first EMF के साथ था, ये second potential difference के साथ, तो ग्राफ इस टाइप से बनेगा। ये कैसे आया, V का फॉर्मूला आपको पता है E माइनस आई आर, और I जो होता है वो V अपॉन आर। पुट द वैल्यू, सो V का फॉर्मूला बन जाएगा E माइनस V अपॉन आर इंटू आर। सो V इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर। देन अभी इस इक्वेशन में आप देखेंगे एज R इंक्रीजेज V इंक्रीजेज, जैसे जैसे आप R को इंक्रीज करेंगे तो V की वैल्यू बढ़ेगी, और जब R इन्फिनिटी होगा देन V इज इक्वल टू E। देन दिस इज अ ग्राफ पॉसिबल। जैसे जैसे R इंक्रीज कर रहा है, V is also increasing but non-linearly, and finally V is equal to E when R is equal to infinity. That's why this line is finally parallel to resistance axis. Now graph between potential difference and current. X axis पे आपने करंट लिया हुआ है और Y axis पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस लिया हुआ है। तो V का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। इसको रीअरेंज करेंगे, माइनस आई आर पहले लिख दिया, V इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई। दिस इक्वेशन शोज दैट V डिक्रीजेस एज I इंक्रीजेस। तो मतलब इस इक्वेशन से क्लियर हो रहा है कि जब आप I को इंक्रीज करेंगे तो ये नेगेटिव फैक्टर बढ़ता जाएगा, तो V की वैल्यू कम होती जाएगी, तो मीन स्लोप विल बी नेगेटिव। इट इज सिमिलर टू द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो y की जगह पे यहाँ पे v है, और m की जगह पे है माइनस r, और x की जगह पे i, और यहाँ पे कांस्टेंट c जो है दैट इज इक्वल टू e, दैट इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, हियर v एक्सिस। सो graph between V and I is a straight line having slope minus r, and E is the intercept on y axis, and here potential difference axis. Cells in series combination. This is one cell of EMF E and internal resistance R, another cell, then another one. All these three cells are connected in series with an external resistance capital R. I is the current flowing through the circuit. V is the voltage drop across external resistance R. Cells are connected in series when they are joined end to end so that same current flows through each cell. If there are n number of identical cells, total EMF of the battery, आपको पता है सारे सेल्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सभी की EMF ऐड हो जाएगी, सभी की पोलैरिटीज़ सेम, मतलब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऑल विल बी एडेड, देन टोटल EMF ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू E प्लस E प्लस E प्लस ऑन इज इक्वल टू NE. सो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, सारी की सारी इंटरनल रेजिस्टेंस वो भी सीरीज में है, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी, तो NR. सेम डायग्राम,
total resistance of the circuit NR plus R, external resistance. करंट का फॉर्मूला पता है नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, देन I इज इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R. If external resistance capital R is very small as compared to net internal resistance of the cells, then current I is equal to E upon R. And if total internal resistance is very less than R, then total internal resistance वाला फैक्टर NR कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा I is equal to N E upon R. So here current will be N times more as compared to first case. So to draw the maximum current from the series combination of the cells, net internal resistance should be very small than the external resistance applied. Next, cells of different EMFs and different internal resistances in series combination. तो ये डायग्राम है. इस डायग्राम में आपके पास दो सेल सीरीज में कनेक्टेड हैं, दोनों की EMF अलग अलग है E1 एंड E2, दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग है R1 एंड R2. दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. दीज आर द टू डायग्राम्स. लेफ्ट साइड वाली जो डायग्राम है दैट इज इक्वलेंट टू डायग्राम ऑफ द राइट साइड. फॉर कनेक्शंस अक्रॉस A and C, the combination can be considered as one cell of EMF E equivalent and internal resistance R equivalent. Let VA, VB and VC be the potentials at points ABC as shown in figure. अब हमें पहले VAB निकालना है. VAB is equal to VA minus VB. It is just simply potential difference between 2 points and its formula is E1 minus IR1. Similarly, VBC is equal to VB minus VC is equal to E2 minus IR2. अब हमें दोनों का कंबाइंड निकालना है VAC. तो ऊपर की दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे. फर्स्ट इक्वेशन में था माइनस VB, सेकेंड इक्वेशन में है प्लस VB. दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. देन यू विल गेट VA माइनस VC. फिर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2. सो E1 प्लस E2 कंबाइन हो जाएंगे, माइनस I कॉमन आ जाएगा इंटू R1 प्लस R2. तो दिस सेम डायग्राम, ये सेम इक्वेशन विच वी हैव कैलकुलेटेड. अब ये है, हम इस इक्वेशन को हम राइट हैंड साइड वाली डायग्राम से हम फाइंड करेंगे डायरेक्टली. VAC इज इक्वल टू VE इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट. कंपेयर दीज टू इक्वेशंस. E equivalent is equal to E1 plus E2 and R equivalent is equal to R1 plus R2. If we connect two negatives, अब मतलब क्या है, जो सेकंड सेल की मान लो पोलैरिटीज़ को रिवर्स कर देते हैं तो नेगेटिव पहले आ जाएगा, पॉजिटिव बाद में आएगा. इट मीन्स दोनों सेल्स के नेगेटिव नेगेटिव आपस में कनेक्ट हो जाएंगे. तो E1 का जो करंट होगा दैट विल मूव अपोजिट टू एज कम्पेयर टू E2. सो E2 विल बी रिप्लेस्ड बाई माइनस E2 and we will get equivalent EMF is equal to E1 minus E2 if E1 is greater than E2. और इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी सेम. रूल्स फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ सेल्स. फर्स्ट वन, equivalent EMF of a series combination of n cells is just the sum of individual EMFs. मतलब सभी EMFs को आप ऐड कर देंगे, दैट्स ऑल. और यदि मान लो कोई भी सेल अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो उसकी EMF को माइनस करेंगे. सेकेंड पॉइंट, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n cells is just the sum of their internal resistances. This is so when all cells are connected in such a way that current due to each cell flows in the same direction, otherwise negative sign will be introduced. वही बात है, सभी सेल्स का जो करंट है वो एक पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, देन EMF को हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे. और यदि कोई भी सेल उसमें से अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है
तो उसको हम EMF को माइनस करेंगे टोटल में से। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल्स, यहाँ पे आपके पास n सेल्स हैं जिनकी EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, दे आर कनेक्टेड in parallel combination as shown in figure. Okay, cells are said to be connected in parallel when they are joined positive to positive and negative to negative. All positives are connected at point A and all negatives are connected at point B. So total EMF of parallel combination of n cells, जैसे सभी सेल्स की EMF सेम है E, then net EMF भी E ही रहेगी because in parallel they have the same EMF. All cells are connected with the same points. So total internal resistance of the n cells, एक सेल की internal resistance R है, small r, all are connected in parallel, so net internal resistance will be R upon n. Total resistance of the circuit R upon n plus capital R. तो सेम सर्किट, तो करंट का फॉर्मूला आ जाएगा NE अपॉन NR प्लस R. इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज वेरी वेरी लेस देन द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, देन I इज इक्वल टू NE अपॉन R. एंड सेकेंड केस में इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन I इज इक्वल टू E अपॉन R. अब इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में जो करंट है वो n टाइम्स मोर एज कंपेयर टू इन सेकेंड केस, सो फर्स्ट केस विल बी प्रेफर्ड. इट मीन्स in parallel combination of cells, to get maximum current, external resistance should be negligible in comparison to total internal resistance. Parallel combination of two cells of EMF E1 and E2 and internal resistances R1 and R2. तो ये आपके पास क्या है डायग्राम में, सी केयरफुली, टू सेल्स हैं जिनकी EMF है E1 and E2, they are connected in parallel, their internal resistances are R1 and R2. I1 is the current drawn from E1 and I2 is the current drawn from E2. Finally both currents combine together and give the resultant I. So I is equal to I1 plus I2. Now let VB1 and VB2 be the potentials at points B1 and B2 respectively. Consider the first cell is connected in circuit, second cell is not there, only first cell. Then we will get V is equal to VB1 minus VB2 is equal to E1 minus I1 R1. वही स्टैंडर्ड इक्वेशन V is equal to E minus IR वाली, V is equal to E1 minus I1 R1. So I is equal to E1 minus V upon R1. Similarly, if we consider only second cell is connected, then V is equal to VB1 minus VB2 is equal to E2 माइनस I2 R2 आएगा, यहाँ पे I की जगह पे I2 R2. देन I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2. अब ये I1 और I2 की इक्वेशन इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, देन एज वी नो दैट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, देन सॉल्व. E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2, देन वी विल गेट दिस वन. I is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2 minus V into 1 upon R1 plus 1 upon R2. Then rearrange it. अब V की वैल्यू फाइंड करेंगे from this above equation. We will get E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2 minus I into R1 R2 upon R1 plus R2. ये फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके ये सेकेंड वाली बनेगी. So V is equal to E equivalent minus I R equivalent. So E equivalent इसकी इक्वल है, we will get E equivalent is equal to E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2. Similarly R equivalent is equal to this. R equivalent is equal to R1 R2 upon R1 plus R2.
तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हमारे पास ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट आ चुकी हैं। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2. So we can generalize it. If there are n cells of EMF E1, E2, so on En, and internal resistances R1, R2, so on Rn respectively are connected in parallel, then combination is equivalent to a single cell of EMF E equivalent and internal resistance R equivalent, such that E equivalent upon R equivalent is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2 plus so on plus En upon Rn. तो ये जनरल इक्वेशन है फॉर n सेल्स. फॉर मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, let us consider there are total capital N cells, each of EMF capital E and internal resistance small r, are arranged in m rows. Each row has n cells, so that n is equal to mn. तो ये डायग्राम है आपके पास टोटल कैपिटल n सेल्स हैं, उसमें टोटल m रोज हैं और एक रो में जो है वो n सेल्स हैं. तो ईच सेल हैज़ सेम EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. दिस फर्स्ट डायग्राम इज इक्वल टू द सेकेंड वन. दिस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सेंड्स करंट I थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R. तो आप जैसे फर्स्ट डायग्राम में केयरफुली देखेंगे तो टोटल एक लाइन में कितने सेल्स हैं n, तो सभी की EMF सेम है. तो E प्लस E सो ऑन n टाइम्स आएगा तो टोटल आ जाएगा NE. तो एक रो की EMF आएगा NE. तो सिमिलरली ऑल रोज में NE पैरेलल में है, सेम है. तो नेट EMF जो रहेगी इसकी, तो ये है आपके पास टोटल EMF ऑफ n सेल्स इज इक्वल टू NE. तो जैसे एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल r और एक ही लाइन में कितने हैं n, तो हो जाएगी NR एक रो की, और वो टोटल रोज कितनी है m, तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी NR अपॉन m. अब टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल्स, तो आपको पता है फॉर्मूला है टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. तो टोटल EMF कितनी है NE, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है NR अपॉन m प्लस कैपिटल R. इसको आप थोड़ा रीअरेंज कर LCM लेंगे तो क्या बन जाएगा, वो m ऊपर चला जाएगा, MNE अपॉन NR प्लस MR. तो ये MN जो है वो कैपिटल N के इक्वल है. तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, I इज इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस MR. स्पेशल केस, I will be maximum when denominator MR प्लस NR will be minimum. तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे. तो MR प्लस NR हमने क्या किया, जस्ट ये दोनों इक्वेशंस को देखें, इक्वेशन तो एक ही है, लेफ्ट साइड और राइट साइड आप कंपेयर करेंगे तो बोथ आर इक्वल. जस्ट वी हैव टू मॉडिफाई इट एज पर आवर नीड. और राइट साइड वाले पार्ट में देखेंगे तो ये 2√mn कैपिटल R स्मॉल r, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा. तो जो फर्स्ट फैक्टर है इसकी, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर मिनिमम चाहिए तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है. सो √mr माइनस √nr इज इक्वल टू 0. क्योंकि बाकी किसी भी वैल्यू पे, क्योंकि साथ में स्क्वायर हो रहा है, बाकी आप कोई भी और वैल्यू लेंगे तो वेदर इट इज़ नेगेटिव देन स्क्वायर करके वो पॉजिटिव बन जाएगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. हमें डिनोमिनेटर मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है. तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास MR इक्वल टू NR. देन अगेन लिटिल सॉल्व इट, R इज इक्वल टू NR अपॉन M. इट मीन्स in mixed grouping, to get maximum current, external resistance capital R in the circuit should be equal to total internal resistance of the cells. Thank you. Have a nice day.